seeing all of you here today means a lot to me, a lot to all of us, especially after what has happened day before yesterday. As you know, I am one of the producers of the film, and with me is Abhishek Agarwal, who's also a producer, and Vivek Agnihotri, of course, who's also the producer and the writer and director of the film. The film, of course, in question is The Bengal Files. And we are here today because the state government and the Kolkata police acting on orders from... Can you hear me now? Okay. So I'm saying we are here today because the state government and the Kolkata police, acting on orders from the highest authority, as you all know, forcibly stopped the trailer launch of our film. And since then, we've been inundated with calls from the media, but rather than responding individually and making it a piecemeal... मैम ऑडियो इशू ऑडियो ब्रेक हो रहा है ऑडियो ब्रेक हो रहा है Can you... I think it's very loud. Am I loud or not? मैम ब्रेक हो रहा है Echo thoda sa. See now? Is this better? माइक Is this better? नो मैम No, not yet. ब्रेक हो रहा है मैम ऑडियो Reverb कम कर सकते हैं? Hello, is this better? Hello. This is better? Okay, now? Yes, better ma'am. Better? Yeah, better ma'am. Okay, so I was saying that yesterday, day before yesterday, we were trying to launch the trailer of our film, The Bengal Files, in Kolkata, and it was forcibly stopped by the state government and the police. And since then, we've been getting a lot of calls from the media, but instead of talking to each one separately and giving the same answers, we thought that as responsible producers, as responsible filmmakers, we should all come in one place and speak in one voice. Because this is not just a film, this is, in our perception, whatever happened day before yesterday, we look at it as a threat to our democracy. So let me give you a brief background. Around 2012, Vivek and I, we were thinking about making films, and we thought about making a trilogy. Now, trilogy in itself as a concept, very few filmmakers around the world have been able to achieve. And to my knowledge, if I'm not mistaken, in India, only the great Satyajit Ray and Mani Ratnam. Is there any problem at the back? Can we have some silence, please? ऑडियो इशू मैम Is there an audio issue now? यस मैम Is there still an audio issue? यस Can we please? भाई ऊपर नीचे जा रहा है ये माइक में प्रॉब्लम हो रहा है मेरे जो ऑडियो सर लेवल इंक्रीज हाई हो रहा है यहाँ से इशू नहीं है कह रहे हैं ये लोग, टेक्निकल लोग. Sir, can we please अपने phone बंद कर सकते हैं? Please maintain order. We are talking about very serious thing and it's a professional thing. So please, let's give due respect to that. अभी है? क्लैरिटी है? ओके. तो मैं बात कर रही थी ट्रिलॉजी की. तो एक ट्रिलॉजी एक ऐसी चीज़ है फिल्म मेकिंग में जो बहुत कम फिल्म मेकर्स ने अचीव की है द वर्ल्ड ओवर. और जहाँ तक मुझे पता है, सत्यजीत रे साहब ने एक ट्रिलॉजी वेरी सक्सेसफुली ही इज मेड अ ट्रिलॉजी, एंड देन मणि रत्नम हैज मेड अ ट्रिलॉजी, एंड ऑफ कोर्स द ग्रेट श्याम बेनेगल मेड अ क्वार्टेट. सो हमने सोचा कि हम एक ट्रिलॉजी बनाएंगे ऑन आवर डेमोक्रेसी. और हमने जो हमारे 3 मुआ शेर हैं, आर नेशनल एम्बलम, वी थॉट दैट वील try and see what do they represent.
जो पहला शेर है वो हमने सोचा इज द राइट टू ट्रूथ, क्योंकि किसी भी डेमोक्रेसी के जो 3 मेन पिलर्स होते हैं उसमें सत्य के ऊपर आपका सबसे ज्यादा अधिकार होता है। और उसमें हमने जब ताशकंद फाइल्स बनाई उसमें हमने मुद्दा उठाया था हमारे दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी की बहुत संदेहास्पद मृत्यु जो हुई थी ताशकंद में, उसके बारे में। अभी 60 साल होने को आए हैं, आज तक अगर उनकी मौत का सत्य हमें पता नहीं है, देन व्हाट should a common man expect to be his right of truth in our democracy? दूसरी फिल्म राइट टू जस्टिस, बिकॉज विदाउट ट्रूथ देयर कैन बी नो जस्टिस। वहां पे हमने कश्मीरी पंडितों की बात की कि जो एक पूरा कश्मीरी पंडित समूह पूरा इतने लाखों में जो लोग उस वादी को छोड़ के आए वापस, 35 साल हो गए आज तक वो वापस नहीं जा पाए हैं, उनको न्याय नहीं मिला है अभी तक। देन व्हाट डज अ कॉमन सिटीजन एक्सपेक्ट? What would be a common citizen's right to justice? Can you open this, Vivek, please? And हमारी जो तीसरी फिल्म है द बंगाल फाइल्स, इसमें सबसे पर्टिनेंट मुद्दा हमने उठाया एंड दैट इज राइट टू लाइफ। जो पार्टीशन हुई थी भारत की, उसमें देयर वाज एन अनप्रेसिडेंटेड अमाउंट ऑफ वायलेंस and millions of people lost their lives and an equal number of people or maybe more were displaced. Sorry. So there were so many people who were displaced और हमारे जो रिसर्च में हमने देखा कि ऑलमोस्ट देयर आर 78 years आफ्टर आवर इंडिपेंडेंस और आज भी बंगाल कंटिन्यूज टू विटनेस द सेम हॉरर्स, बिकॉज अ केस इन पॉइंट इज व्हाट वी हैव रिसेंटली सीन इन मुर्शिदाबाद। सो डू वी एज सिटीजन्स ऑफ इंडिया, डू वी हैव अ राइट टू लाइफ? दिस इज अ वेरी पर्टिनेंट क्वेश्चन दैट वी आस्क्ड इन द बंगाल फाइल्स, एंड वी फील दैट इट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड डिफाइनिंग फिल्म्स ऑफ आवर टाइम, बिकॉज जहां हमने 3 नुआ शेरों की बात की है, तो हमारे नेशनल एम्ब्लेम में एक्चुअली 4 शेर हैं। चौथा शेर जो है वो हमें कभी दिखता नहीं, बट इट्स ऑलवेज देयर इन स्पिरिट, एंड दैट लायन रिप्रेजेंट्स यू, मी, अस, द पीपल ऑफ इंडिया। इट्स वी द पीपल ऑफ इंडिया। एंड बिकॉज दिस फिल्म ऑफ आवर्स इज रूटेड इन बंगाल and we are tracing back to direct action day massacres and the Noakhali genocide and even the recent riots, we felt that it's most appropriate to launch the trailer in Bengal itself on August 16th, which is the anniversary of the direct action day. Yet, as you all witnessed, you saw what happened. The government silenced us, and we feel that it's an act which is not only arbitrary, but it's also unconstitutional. And when our trailer was stopped, it was very laughable grounds, because they kept telling us that we didn't have some kind of a municipal permission and it was a private gathering inside a 5-star hotel. And the videos are all out. I'm sure you've seen the chaos that followed. In that, a lot of women journalists got hurt. You saw how I was also, very uncomfortable, and thanks to Vivek that we managed to get out of that. So I think somewhere along the line, we felt that the police, the government is forgetting the basic duty, and that is protecting its citizens, and especially the women. The modesty of women, I think that should have been the sole priority of the police, and their priority was to stop our trailer. This is what is happening. So what has happened that day was not merely an assault on the film, but an assault on democracy itself. The voice of the fourth lion, the people of Bharat, was suppressed and censored by the brute state power, exactly as the voices of ordinary citizens were crushed under the Mughal and the British Raj. The absence of dignity, the absence of value of life, which is the very theme of our film. And on this Black Day, the state government itself proved that our theme is correct. So with that, I am going to close my opening statement, and I am going to hand over the mic to Vivek to give you detail of the journey
and of course everything else that he would like to speak to you. Thank you very much. थैंक यू. सॉरी फॉर द हिकअप्स छोटे मोटे, क्योंकि हम लोग कल ही कलकत्ता से हैं, रात को पहुँचे हैं और काफ़ी हम लोग अमेरिका में थे, 1 महीने से अपनी फिल्म की स्क्रीनिंग कर रहे थे. तो मैं आपको आई जस्ट टेक यू थ्रू एग्जैक्टली क्या हुआ, और मैं आपको एक ऐसा वीडियो दिखाने वाला हूँ जिसे देख के मैं तो चौंक ही गया, आप लोग भी चौंक जाएंगे. पर वो आज पहली बार मैं किसी को दिखा रहा हूँ. पर आपको मैं स्टेप बाय स्टेप 1 2 3 4 क्या हुआ, लेकिन अगर यहाँ दिखाएंगे तो हम लोग सामने नहीं आ जाएंगे. तो हाँ, थोड़ा हम लोग मूव कर जाते हैं इधर किनारे. मैं आपको आई टेक यू स्टेप बाय स्टेप. हाँ, जहाँ भी कर लिया, मैं यहाँ खड़े होकर बोल देता हूँ. आई कैन स्टैंड हियर एंड टॉक. नो, हाँ, नहीं, मैं यहाँ से कर. मैं आपको आपने 15 मिनट का स्क्रीनर देखा, आपको समझ में आ गया होगा इस फिल्म के पीछे कितनी मेहनत गई है. 20 मार्च 2020 को जब लॉकडाउन लगा था, हम लोग कश्मीर फाइल्स की शूटिंग पे जाने वाले थे. तो शूटिंग के लिए रुक गए, बम्बई में जा नहीं पाए. तो हमारी जो रिसर्च टीम थी, हमने अगली फिल्म की रिसर्च चालू की. और तब से लेकर अब तक पिछले 5 साल में एक बहुत ही गहन अध्ययन के बाद, एक बहुत ही इंटेंसिव रिसर्च के बाद, ये फिल्म ऐसी है कि पार्टीशन का सब्जेक्ट कोई अपने मन से कर नहीं सकता है. और इसमें चाहे लेफ्ट हो, चाहे राइट हो, चाहे वेस्टर्न हो, चाहे इंडियन हो, हमने 100 साल 102 साल के लोगों को ढूंढ के, जो सर्वाइवर्स थे उनके इंटरव्यूज किए. हमारा रिसर्च जो है वही 18,000 पेजों की समरी है. ओनली समरी इज 18,000 पेजेस. तो सोच लीजिए कितना इंटेंसिव रिसर्च होगा. मैं लेके भी आया हूँ एक बुक जो उसके बाद की है, जो मैं आपको दिखाता हूँ. जो इतना बड़ा रिसर्च मुझे नहीं लगता है भारत के फिल्मी इतिहास में किसी भी लैंग्वेज में किसी भी डायरेक्टर प्रोड्यूसर ने कभी किया होगा. क्योंकि हम इसको अपनी बहुत जिम्मेदारी मानते हैं कि भारत में जब गांधी फिल्म बनी थी, जो कि उस वक्त कांग्रेस गवर्नमेंट ने बनवाई थी एनएफडीसी के थ्रू, उसने पूरे वर्ल्ड में इंडिया की फ्रीडम मूवमेंट को, सारे वर्ल्ड को बताया. और उसका कारण यह है कि आज आप किसी भी शहर में जाएंगे, आपको गांधी जी की स्टैचू मिलेगी बिकॉज ऑफ दैट वन फिल्म. तो हमको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी पता है अपनी कि एक फिल्म कितनी इंपॉर्टेंट होती है ऐसे सब्जेक्ट में. इसमें जितने इंडिया के हिस्टोरियंस हैं, एक्सपर्ट्स हैं, सबकी राय लेके ये फिल्म बनी है. जब मैंने सीबीएफसी में ये फिल्म दिखाई तो 50 सवाल खड़े हुए. इंडिया के बेस्ट हिस्टोरियंस को कमिटी में बुलाया गया, एग्जामिनिंग कमिटी में, रिव्यू कमिटी में. एक सवाल का हमने 100 डॉक्यूमेंट्स उनके सामने प्रेजेंट किए. ये फिल्म एग्जामिनिंग कमिटी के थ्रू गई, रिवीजन कमिटी के थ्रू गई, और तब जाके ये विदाउट एनी कट, विदाउट एनी मॉडिफिकेशन, एक चेंज के बिना इस फिल्म को सर्टिफिकेट मिला. और जब सर्टिफिकेट मिला तो हम लोगों ने, अमेरिका में बहुत डिमांड थी इस फिल्म की, और हमें लगा कि हम अपनी फिल्म को एज आ इंडियन सॉफ्ट पावर यूज करें. और हमने वहाँ के पॉलिसी मेकर्स, वहाँ के मीडिया, ज्यू सोसाइटी, ब्लैक सोसाइटी, स्पेनिश सोसाइटी, और भी जितने परसिक्यूटेड लोग हैं, उनको ये फिल्म वहाँ जाके दिखाई. मैं आपको लास्ट में दिखाऊंगा, पर आप जो लोग जानते हैं शायद उनने देखा भी होगा कि ये फिल्म 400 सीट के जो थिएटर थे वो खचाखच भरे थे, और उतनी ही वेट लिस्ट थी. और वहाँ के टॉप कांग्रेसमैन, सेनेटर्स. और एक बड़े गर्व की बात आपको बताता हूँ, शायद ही भारत के इतिहास में किसी और फिल्म के साथ हुआ है, कश्मीर फाइल्स के साथ हुआ था. हम जब अमेरिका गए थे तो वहाँ कैपिटल हिल में, कैपिटल हिल मतलब वहाँ की संसद, वहाँ की पार्लियामेंट, वहाँ पे हम लोगों को इनवाइट किया गया था उस फिल्म को प्रेजेंट करने के लिए. और इस बार फिर फिल्म रिलीज भी नहीं हुई है, और हमको वहाँ का कैपिटल हिल में इस बार फिर इन्वाइट किया गया द बंगाल फाइल्स को प्रेजेंट करने. और बहुत सक्सेसफुली वहाँ के कांग्रेसमैन और सेनेटर्स के सामने हम इसको प्रेजेंट किया, और भारत की अपनी बात वहाँ पे रखी. लेकिन जब ये फिल्म सक्सेसफुल होने लगी, अमेरिका में ही मुझे खबर मिली कि हमारे अगेंस्ट एक के बाद एक कई सारी FIRs फाइल की गई वेस्ट बंगाल में. और ये खुलेआम, ऐसा नहीं है किसी आम आदमी ने किया, किसी को पता भी नहीं है इस फिल्म के अंदर क्या है. आज पहली बार तो मैंने इस फिल्म की थीम यहाँ पे दिखाई है, इसलिए क्योंकि मैं चाहता था आपको दिखाई जाए. ये रातों रात हमने स्क्रीनर बना के आपके लिए तैयार किया है. टी शर्ट भी वही आप देख सकते हैं. तो जब इस फिल्म सक्सेसफुल होने लगी
तो वेस्ट बंगाल में जो रूलिंग पार्टी है टीएमसी, उनके मेंबर्स ने हर जिले हर मोहल्ले में जाके हमारे खिलाफ एफआईआर फाइल करनी चालू की। और वहां की जो पुलिस है उसने ये तक नहीं हमको बताया, नोटिस में जो उनने एफआईआर हमारे पास आई, ये तक नहीं बताया कि कारण क्या है एफआईआर के पीछे। मैं आपको दिखाता हूं, जरा नंबर 3 एफआईआर कॉपीज जरा दिखाइए लोगों को, दिखाइए। नेक्स्ट, टीएमसी नेताओं ने दर्ज की एफआईआर, ये न्यूज है, ये मुझे वहां पता चली। नेक्स्ट दिखाइए, नेक्स्ट स्लाइड, नेक्स्ट स्लाइड, ये एफआईआर देखिए, नेक्स्ट स्लाइड, ऐसी तमाम है, ये देखिए, नेक्स्ट स्लाइड, ये देखिए, नेक्स्ट स्लाइड, नेक्स्ट स्लाइड, इसके बाद है कोई स्लाइड? या सो और ये सारे टीएमसी के वर्कर्स ओपनली सोशल मीडिया में लिख लिख के कर रहे हैं। आप मुझे बताइए, एक फिल्म जो रिलीज नहीं हुई, किसी को पता नहीं, और भारत के ऐसे पार्टीशन के ऊपर है जो सारे वर्ल्ड को पता चलना चाहिए, सारी दुनिया इसकी तारीफ कर रही है। जिसने ये फिल्म देखी है, लोग रोए हैं देख के कि क्या दुर्दशा हुई थी हमारी। और बल्कि वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट को तो हमको आमंत्रित करना चाहिए, क्योंकि वेस्ट बंगाल की हिस्ट्री पे इससे डिफाइनिंग फिल्म कोई नहीं बनी आज तक। डायरेक्ट एक्शन डे का वो ब्लैक डे, नोआखली जेनोसाइड, जिसके कारण आज हमसे बंगाल छीन लिया गया, ईस्ट बंगाल बन गया, अब बांग्लादेश है। अगर वो 2 इवेंट्स नहीं हुए होते तो आज बांग्लादेश भारत का पार्ट होता और लाखों लोग नहीं मारे गए होते। और इतना ही नहीं, ये फिल्म तो बंगाल के गौरव के बारे में बात करती है। विश्व के इतिहास में फ्रांस के बाद एकमात्र ऐसी भारतीय स्टेट है जहां पे रेनेसांस हुआ, इंडिक रेनेसांस हुआ, उस ग्रेटनेस की बात करती है। नेशनलिस्ट मूवमेंट बंगाल से चालू हुआ, वेदांतिक मूवमेंट बंगाल से चालू हुआ, एक से एक महान लोग वहां पे पैदा हुए। उसके गौरव की हमने क्या खोया है। कलकत्ता वर्ल्ड की कल्चरल कैपिटल हुआ करती थी, कलकत्ता वर्ल्ड की इंडस्ट्रियल कैपिटल हुआ करती थी, वर्ल्ड के सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट सिटी हुआ करती थी, और आज उसकी क्या दुर्दशा हो गई, हमने क्या खोया है। लेकिन इस फिल्म पे लगातार रूलिंग पार्टी स्टेट पावर एफआईआर फाइल कर रहा है। इसके बाद जैसा पल्लवी जी ने बताया, चूंकि फिल्म डायरेक्ट एक्शन डे पे बेस्ड है, आप बताइए बॉलीवुड के जो लोग हैं अपनी फिल्म ईद पे रिलीज करते हैं, 16-15 अगस्त को करते हैं, 26 जनवरी को करते हैं, अपने जन्मदिन पे करते हैं। फिल्म की जो थीम होती है उसके हिसाब से करते हैं, उसमें कोई गलत बात नहीं है, सारी दुनिया में होता है। तो डायरेक्ट एक्शन डे पे बनी फिल्म को 16 अगस्त को कलकत्ता में रिलीज करना कौन सा गुनाह है। और आपने आज तक कभी, आप सब मीडिया में है, कभी किसी ट्रेलर को आप लोगों ने आज तक सिनेमा हॉल के अलावा कहीं और देखा नहीं होगा। सारे ट्रेलर सिनेमा हॉल में लॉन्च किए जाते हैं। मैं आज इतने साल मेरा करियर हो गया, मेरी हर फिल्म का ट्रेलर सिनेमा हॉल में लॉन्च हुआ है, कहीं और नहीं होता है। तो हमने भारत की एक बहुत बड़ी मल्टीप्लेक्स चेन, नंबर 1 मल्टीप्लेक्स चेन के थिएटर में, वहां पे एक बहुत बड़े मॉल में, वहां पे हमने बुक किया और 16 अगस्त को हम वहां पे लॉन्च करने वाले थे। हमारे पास सारी परमिशन थी, हमारी टीम वरना जाती क्यों वहां पे। और ट्रेलर लॉन्च करने के लिए कौन सी ऐसी बहुत बड़ी परमिशन लगती है, हर दिन तो ट्रेलर लॉन्च होते हैं फिल्मों के। लेकिन जब मैं पहुंचा कलकत्ता एयरपोर्ट पे तो मुझे पता चला कि हम वहां पे लॉन्च नहीं कर सकते, और अनऑफिशियली हमको बताया गया कि इसके पीछे कारण यह है कि वो जो एरिया है उनके ऊपर पथराव हो जाएगा और उनके लिए पॉलिटिकली कलकत्ता में बिजनेस करना असंभव हो जाएगा। इस डर से उनने कहा कि प्लीज हमें माफ करिए, हम आपका ट्रेलर लॉन्च नहीं करेंगे, भले ही आपके पास सारे परमिशंस हों। हमने एक दूसरी थिएटर चेन को कांटेक्ट किया, उन्होंने भी हमको मना कर दिया। दिखाइए जरा नंबर 4 पीवीआर न्यूज, नेक्स्ट दिखाइए, नेक्स्ट दिखाइए, है उसमें नेक्स्ट। तो ऐसी बहुत सारे हैं, तमाम न्यूज ही पूरी सब जगह आप ही लोगों ने लिखी है। पर मैं भी हारने वालों में से नहीं हूं, डरने वालों में से नहीं हूं। और एक फिल्म मेकर का, एक क्रिएटिव आदमी का, एक कवि का, एक थिएटर वाले का, एक लेखक का, फिल्म मेकर का कर्तव्य होता है, और मीडिया वालों का, कि फ्री स्पीच के अगेंस्ट लड़ाई लड़ें। और आप जानते हैं मेरा पूरा करियर मैंने फ्री स्पीच के अगेंस्ट बहुत लड़ाई लड़ी है। तो हमने कहा हम इसको करेंगे। आईटीसी सोनार, आईटीसी रॉयल, जो कि कलकत्ता का हेरिटेज होटल है,
और भारत की नंबर 1 चेन है, उनसे अधिक प्रोफेशनल ताज ग्रुप और आईटीसी इंडिया के सबसे ज्यादा प्रोफेशनल होटल चेन्स हैं। और कलकत्ता वाले लोग उसको अपनी इज्जत मानते हैं, वो कहते हैं ये हमारा प्रेस्टीज, हमारा ऑनर है आईटीसी। उसके इसी तरह के बैंकेट हॉल में हमने उनसे सारी परमिशंस लेके उसके बाद उसका आयोजन किया, जैसे अभी हो रहा है। अब मैं आपसे एक सवाल ये पूछना चाहता हूं, क्या ये संभव है? आप अपने कॉमन सेंस से सोचिए, ये फंक्शन जो चल रहा है ये रातों रात हमने किया है, क्या ये संभव है बिना किसी परमिशन के? इसी तरह का हमने एक प्राइवेट किया जहां पे मीडिया वाले आए, 150 से 200 मीडिया वाले। वहां कलकत्ता का कोई ऐसा मीडिया चैनल नहीं है जो वहां पे नहीं आया। और वहां पे हमारा जब फंक्शन चालू हो गया, ऐसी स्क्रीन वहां पे भी लगी थी, बिल्कुल यही माहौल वहां था, वहीं से ये सब चीजें यहां आ गई हैं आज कल रात में। तो जब हमने शुरू किया, सब कुछ हुआ, बातचीत हुई, भाषणबाजी हुई, और जब ट्रेलर चलाने का वक्त आया, जैसे ही ट्रेलर को ऑन किया गया, आईटीसी के जो मैनेजर थे उन्होंने ऐसे ही जगह थी बिल्कुल जैसा यहां आप देख रहे हैं, वहां आके वो खड़े हो गए। उन्होंने बोला ये ट्रेलर नहीं चल सकता है। उनसे पूछा गया कि भाई क्यों, अभी अचानक क्या हो गया? अच्छा, उन्हीं की प्रेजेंस में, उन्हीं के सुपरविजन में, मेरी आंखों तक, मैं अपनी आंखों देखी बात बता रहा हूं, रात भर ये लगता है, आप सब जानते हैं, ट्रायल्स होते हैं, टेस्ट होते हैं, 25 बार चलता है। जब मैं वहां पे गया तो मैंने कहा जरा साउंड आउट मुझे चेक करा दो, और जब मैं साउंड चेक कर रहा था, वही मैनेजर साहब मेरे साथ खड़े हुए थे, कहते सर चाय पी लीजिए, कुछ कर लीजिए, समथिंग लाइक दैट, वही खातिरदारी में लगे हुए थे। और उन्हीं की प्रेजेंस में सब कुछ हुआ, उन्हीं के सुपरविजन में हुआ, उनकी सारी सिक्योरिटी वहां थी, उनकी सारी टीम वहां पे थी, हमारी इतनी बड़ी टीम थी। आप मुझे खुद बताइए कि कैसे संभव है कि इतना बड़ा मीडिया और सब कुछ पहुंचे अगर किसी को प्रॉब्लम हो। और प्रोग्राम जैसे अभी चल रहा है, एकदम से कोई आ जाए अभी और यहां पे कह दे कि नहीं आप अगला वीडियो नहीं दिखा सकते। तो जब उनसे हमने पूछा कि भाई क्या प्रॉब्लम है, और बड़ी सभ्यता के साथ, कुछ ऐसा नहीं, क्या प्रॉब्लम है, तो जब पता चला प्रॉब्लम हो रहा है तो सारा मीडिया जो है उठ के उनकी तरफ चला गया। जब उनकी तरफ गया और मीडिया वालों ने पूछा सर हमें ये बताइए क्या प्रॉब्लम है, मीडिया ने सिर्फ सवाल पूछा कि सर प्रॉब्लम क्या है। अगर आप मुझे बताइए, अगर कोई एक इतने बड़े होटल का मैनेजर अगर कोई प्रॉब्लम है तो बताएगा क्यों नहीं क्या प्रॉब्लम है। आप अगर पूछे क्या, अभी आके कोई रोक दे और अगर आप पूछे क्या प्रॉब्लम है तो आदमी बताएगा नहीं, बोलेगा साहब ये लोग जो हैं इनके अगेंस्ट एफआईआर है, हम नहीं दिखा सकते, हमें गवर्नमेंट को ऑर्डर है, हम नहीं दिखा सकते, इनने जो है इलीगली हमारे प्रेमिस में घुस गए और जबरदस्ती ये टीवी लगा दिया और दिखाना चाह रहे हैं, हम इन्हें रोकना चाहते हैं। कुछ तो बोलेगा। पर आप जानना चाहते हैं क्या हुआ, मैं दिखाता हूं आपको, दिखाइए नंबर 5। और इस तरह से मैनेजर साहब भाग गए वहां से। बाद में मुझे उनने जो पता चला मैं आपको बाद में बताऊंगा। पर उसी दिन सुबह मुझे खबर आई थी कि बहुत सारे टीएमसी के मेंबर्स और पुलिस आने वाली है और हमारा प्रोग्राम किसी भी तरह से पॉसिबल ही नहीं होगा चला पाना। और ये लोग सुबह से सोशल मीडिया में लग रहे थे। अगर आप लोग थोड़ा रिसर्च का शौक रखते हो तो आप जाके चेक कर सकते हैं, आजकल तो बड़ा इजी है उसको सर्च करना। आप देखिए उस दिन सुबह लगातार सब लोग लिख रहे थे कि आप ये प्रोग्राम कर ही नहीं सकते, हम आपको चैलेंज करते हैं, होने ही नहीं दिया जाएगा। मैंने बहुत लाइटली लिया। हमें ये लगा कि उस शाम को हम लोग शहीद मीनार जाने वाले थे, जहां से सुहरावर्दी, जिनको बुचर ऑफ बंगाल बोला जाता है, जो चीफ मिनिस्टर थे उस वक्त बंगाल के, उन्होंने भाषण दिया था और उन्होंने कहा था कि अब तो या तो डिस्ट्रॉयड इंडिया रहेगा, डिवाइडेड इंडिया, और इतने हिंदुओं को मारो किया कि डेमोग्राफी चेंज हो जाए और मुस्लिम्स मेजॉरिटी में आ जाए, ताकि कलकत्ता जो है वो पाकिस्तान में चला जाए। तो हमने कहा उस जगह जाके वो लाखों लोग जो मरे थे उनको हम अपना ट्रिब्यूट देंगे। लेकिन तो मेरा ये शक था कि ये सारी पुलिस और वर्कर्स जो है वहां आने वाले हैं। मैं कभी सोच ही नहीं सकता था सपने में कि एक 5 स्टार होटल में, वो भी इंडिया के सबसे बड़े 5 स्टार होटल में, इतनी भीड़ होगी। जब मैंने बाहर देखा जाके तो पुलिस ही पुलिस भरी हुई थी, लेकिन पुलिस अंदर नहीं आ रही थी क्योंकि पुलिस अपना चेहरा नहीं दिखाना चाहती थी, वो चाहती थी होटल कैंसिल करें। लेकिन उसके बाद मैंने कहा कि ये हमारा राइट है एंड वी विल शो द ट्रेलर। जब मैनेजर चले गए मैंने कहा ट्रेलर चालू करिए। जैसे ही मैंने कहा ट्रेलर चालू करिए, ट्रेलर के 10 फ्रेम भी नहीं चले थे, पुलिस वॉक्स इन। और अब मैं आपको दिखाता हूं 2-3 छोटे छोटे वीडियोज, आपने देखे भी होंगे, काफी वायरल हो रहे हैं, लेकिन मेरा कर्तव्य है इसलिए मैं आपको दिखा रहा हूं ताकि सारे फैक्ट्स आपके सामने आए और संदेह किसी बात का नहीं रहे। नंबर 6 ट्रेलर थे। तो वीडियोज को 50 में दिखा सकता हूं, लेकिन ये यूजर्स ने जो डाले हैं सोशल मीडिया में वही मैं आपसे शेयर कर रहा हूं, जस्ट टू गिव यू
द फैक्चुअल कंटेंट आपको देख के समझ में आ रहा हो, आप मीडिया वाले कि क्या हुआ होगा। मैं एक चीज़ और यहाँ बताना चाहता हूँ, आपने वीडियोस में कहीं दिखा नहीं दिखा कि बहुत सारे ऐसे भी लोग थे जो कि अभी आप बैठे हैं उसका पार्ट नहीं थे। जब ये कैओस चालू हुआ सडनली पीछे बहुत सारे अननोन फेसेस जिनका मीडिया से कोई लेना देना नहीं है वो सब भी घुसाए। मुझे बाद में ऐसा कई लोगों ने बताया कि वो सारे पार्टी वर्कर्स थे और पुलिस और पार्टी वर्कर्स ने मिलकर अनकॉन्स्टिट्यूशनली हमारे ट्रेलर को रद्द किया। भारत के इतिहास में फिल्में तो बहुत सारी कैंसिल हुई हैं, कई सारी फिल्मों को बैन भी लगा है, पॉलिटिकल पार्टीज ने भी ऑपोजिशन किया है। 78 साल में लिस्ट है बहुत। शायद ये पहली बार भारत के इतिहास में किसी फिल्म के ट्रेलर को एक स्टेट गवर्नमेंट ने बैन किया है। अब सवाल ये उठता है कि ये कौन है इसके पीछे। ये हो सकता है कि कई उत्तेजित पार्टी वर्कर्स हो सकते हैं, कई पब्लिक के लोग हो सकते हैं जिनको आपत्ति हो, लेकिन मैं आपको एक ऐसा वीडियो दिखाने जा रहा हूं जो शायद आपने नहीं देखा होगा, जिसको देख के सारे तार एक दूसरे से जुड़ते हैं। और ये बहुत गंभीर बात है और बहुत डरावनी बात है। जिन लोगों ने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की ओथ लेते हैं, हमारे जजेस, हमारे मिनिस्टर्स, चीफ मिनिस्टर्स, गवर्नर्स, प्रेसिडेंट, ये लोग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की ओथ लेते हैं। और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिखा गया है कि स्टेट ऑफिशियल जो ये हैं इलेक्टेड, इनका ये धर्म है, इनकी ये ड्यूटी है, इनका ये कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी है कि ये कॉमन लोगों के राइट्स को प्रोटेक्ट करेंगे, खास तौर पे उनकी फ्री स्पीच को, उनकी सेफ्टी को। लेकिन अगर रक्षक ही भक्षक बन जाए तो कोई क्या कर सकता है? मैं फिर से बोलता हूं, अगर रक्षक ही भक्षक बन जाए तो क्या कर सकते हैं? हम और आप कॉमन लोग हैं, लेकिन अगर स्टेट की चीफ मिनिस्टर आप पे अटैक करने लगे तो आप क्या कर सकते हैं? आप कुछ नहीं कर सकते। चूंकि हम पे एफआईआर हुई थी और मैं अमेरिका में था और हमने हाई कोर्ट में अपील की थी तो हमें स्टे मिल गया था। स्टे 18 तारीख तक का मिला था, इसलिए शायद उन एफआईआर के तहत कल हम लोग को अरेस्ट नहीं कर पाए। अगर वो नहीं होता तो शायद हम लोग आज जेल के अंदर होते। अब मैं आपको वो वीडियो दिखा रहा हूं और मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, अगर आप लोग मीडिया वाले और फ्री स्पीच में बिलीव करते हैं तो इस वीडियो को इतना चलाइए कि पूरे हिंदुस्तान को पता चले कि बंगाल में आज किस तरह डेमोक्रेसी की हत्या की जा रही है। चलाइए जरा नंबर 7। लोकल पुलिस ने इसी तरह पकड़ के होटल अरेस्ट कर दिया था, हाउस अरेस्ट नहीं, होटल अरेस्ट, और 2 दिन वहां रखा था और उसके बाद उनको उसी फ्लाइट से वापस भेज दिया था। उसके बाद का ये वीडियो है। ये 1.5-2 साल पहले से वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर साहब ने डिसाइड कर लिया था कि हमें अंदर नहीं जाने देंगे। उन्होंने नाम लेके तब बोला था द बंगाल फाइल्स की टीम यहाँ आई है। आप सुन सकते हैं, मैं फिर से चलाता हूँ। द बंगाल फाइल्स की टीम यहाँ पे आई है। टीम मतलब रिसर्च करने गए थे हमारे लोग। टीम यहाँ आई है और दूसरा उनने एक बहुत जो आपत्तिजनक स्टेटमेंट दिया है, जो कि एक जिसने भारत के कॉन्स्टिट्यूशन की ओथ ली है उसके बाद बोलना अपने आप में एक बहुत बड़ा गुनाह है, ये क्राइम है। उन्होंने बोला है कि कश्मीर फाइल्स जो है वो कश्मीर के लोगों को अपमानित करती है, ऐसा उन्होंने बोला। सुन लीजिए, अपमानित करती है। 5 लाख लोग जिनको काट मार के भगा दिया गया वहां से, कश्मीर से, उन लोगों को अपमानित करती है। अगर कश्मीरी पंडित आज ये आपके मार्फत सुन लेंगे तो आप सोचिए उनके दिल पे क्या गुजरेगी। ये कैसे कोई बोल सकता है? एक बार फिर से चलाइए इसको। Since few days ago, अब सवाल ये उठता है, उन्होंने 2-3 बातें बोली। उन्होंने बोला कि फंडेड बाय बीजेपी। इसका मैं जवाब नहीं दूंगा क्योंकि दिस इज हिलेरियस। उसके बाद उन्होंने बोला डिस्टॉर्टेड फैक्ट्स। मैं ये जानना चाहता हूं कि क्या भारत का पार्टीशन नहीं हुआ था? ये डिस्टॉर्टेड फैक्ट है। क्या जेनोसाइड नहीं हुआ डायरेक्ट एक्शन डे में? ये डिस्टॉर्टेड फैक्ट है। क्या नोआखली जेनोसाइड नहीं हुआ जहां गांधी जी 6 महीने रहे थे? जब भारत आजाद हुआ गांधी जी दिल्ली में नहीं थे, नोआखली में थे, क्योंकि वहां पे हिंदुओं का जेनोसाइड हो रहा था। न्यूयॉर्क टाइम्स में गांधी जी का स्टेटमेंट है, हिंदूज प्लीज रन अवे फ्रॉम नोआखली और बी प्रिपेयर टू डाई। हिंदुस्तान टाइम्स तो न्यूयॉर्क टाइम्स की हेडलाइन है, जो हमारी फिल्म जब आप देखेंगे उसमें हमने वो डाला है, ओरिजिनल न्यूज़पेपर। मुर्शिदाबाद में जो अभी राइट्स हुई, क्या डिस्टॉर्टेड फैक्ट्स हैं? और अगर डिस्टॉर्टेड फैक्ट्स लगते हैं तो फिल्म रिलीज होने के बाद, देखने के बाद डिसाइड किया जाएगा डिस्टॉर्टेड फैक्ट्स हैं कि 1.5-2 साल पहले ही जब हमारी रिसर्च टीम गई तभी आप डिसाइड कर लेंगे।
और तीसरा बहुत आपत्तिजनक बात है कि उन्होंने जो कश्मीरी हिंदुओं के बारे में जो बोला है, ये बहुत ही दिल को दुखाने वाली बात है। अब मैं आपको बताता हूं जो मुझे सोर्सेज के थ्रू, आप सब लोग जर्नलिस्ट हैं, आप भी इन्वेस्टिगेट करते हैं, आप सोर्सेज के थ्रू बहुत सारी न्यूज छापते हैं, हम भी इन्वेस्टिगेटिव फिल्म मेकर्स हैं, हमारे भी बहुत सारे सोर्सेज हैं, हमें बहुत ही रिलायबल, मोर देन रिलायबल सोर्सेज, इनफैक्ट फ्रॉम दी हॉर्सेज माउथ मुझे ये पता चला है कि आपत्ति क्या थी उस ट्रेलर में। तो मैं आपको बताता हूं, सबसे पहली आपत्ति, जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो था जिसके कारण ये हम पे अटैक किया गया, दिखाइए नंबर 8, ये ट्रेलर में जो लाइन है, ये हमारा ट्रेलर दिखाने के पहले, चूंकि जब ट्रायल चल रहे थे उसे देखा गया था, तो ये बोला गया था कि इसको हटवाओ इसमें से। सवाल ये उठता है, सारी दुनिया में क्रिश्चियन हिस्ट्री पे फिल्म बनती हैं, इस्लामिक हिस्ट्री पे फिल्म बनती हैं, बुद्धिस्ट हिस्ट्री पे फिल्म बनती हैं, जीव हिस्ट्री पे फिल्म बनती हैं, और उन लोगों को काफी रिस्पेक्ट की जाती है। भारत में हिंदू हिस्ट्री पे पूरे वर्ल्ड में एक ही कंट्री है जहां पे हिंदू रहते हैं, हिंदू सिविलाइजेशन है। एक और बड़ा तथ्य मैं आपको बताना चाहता हूं, पूरे वर्ल्ड की हिस्ट्री में एकमात्र एक ऐसा राष्ट्र है, सारी दुनिया ये समझती है कम्युनिस्ट थिंकिंग में कि मेजॉरिटी जो है वो ऑप्रेसर होती है, माइनॉरिटी ऑप्रेस्ड होती है। किसी भी हालत में आप जाएंगे वेस्टर्न वर्ल्ड में ये माना जाता है कि जो लोग मेजॉरिटी में हैं वही ऑप्रेसर हैं, वही लोग गुनाह करते हैं, और माइनॉरिटी हमेशा विक्टिम होती है। लेकिन हिंदुस्तान एकमात्र ऐसा राष्ट्र है जहां पे मेजॉरिटी गुलाम रही और माइनॉरिटी ने उस पर रूल किया, उसको परसिक्यूट किया, उसको गुलाम बनाया। पहले मुगल माइनॉरिटी ने, उसके बाद ब्रिटिश माइनॉरिटी ने। यहां पे लिखा जाता था कलकत्ता में, डॉग्स एंड इंडियंस नॉट अलाउड। तो अगर अनटोल्ड स्टोरी ऑफ हिंदू जेनोसाइड दिखाने की एक फिल्म मेकर चेष्टा करता है तो उस पर किसी को क्या आपत्ति होनी चाहिए और क्यों होनी चाहिए, इसके पॉलिटिकल रीजंस आप सब जानते हैं। दूसरा उनका जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम था वो था ये, दिखाइए, ये डेमोग्राफी चेंज का जो इशू था, इसको लेके प्रॉब्लम था। लेकिन आप जो भी बंगाल जाते हैं रिपोर्टिंग करने, बंगाल में आप बच्चे से पूछ लीजिए, खुद जाके देख लीजिए, डेमोग्राफी चेंज इन बंगाल इज अ रियलिटी। एक नेचुरल डेमोग्राफी चेंज होती है। अगर यहाँ पे समझिए कुछ यूपी के लोग आके अगर किसी एक कॉलोनी में धीरे धीरे बसते जाएं, वो एक नेचुरल डेमोग्राफी चेंज होती है, काम ढूंढने बिहार के लोग जैसे आते हैं। लेकिन जब स्टेट गवर्नमेंट खुद डेमोग्राफी चेंज को सपोर्ट करे और एम्पावर करे, तो ये एक सीरियस इंटरनल सिक्योरिटी की कंसर्न होता है। हमने इस मुद्दे को अपनी फिल्म में उठाया है डेमोग्राफी चेंज के, और इस बात को लेके वहां पे बहुत बड़ी आपत्ति थी। एंड दिस आई हैव बीन इन्फॉर्म्ड फ्रॉम वेरी रिलायबल सोर्सेज। मैंने आपको ये सब दिखाया। मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि ये जो फिल्म है, ये मेरी आवाज नहीं है, ये भारत के वी द पीपल ऑफ भारत की आवाज है। दिस इज द वॉइस ऑफ एवरी इंडियन। ये फिल्म 5 साल के इंटेंसिव रिसर्च के बाद बनी है। जैसा मैंने बताया, इसकी समरी ही 18,000 पेजेस की है। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट डिफाइनिंग फिल्म एवर ऑन हिंदू हिस्ट्री। दिस इज अ फिल्म, आज से 100-200 साल बाद ये एक हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट बनेगा पूरे वर्ल्ड में। दिस फिल्म विल एस्टैब्लिश द रियलिटी ऑफ अवर पार्टीशन पे पंजाब से रिलेटेड फिल्में बनी हैं, पर जो लोग नहीं जानते मैं बता दूं कि पार्टीशन का जो कुरुक्षेत्र था, जिसके कारण पार्टीशन हुआ, वो था बंगाल। बंगाल एकमात्र ऐसी स्टेट है जो 2 बार डिवाइड हुई, 1905 में हिंदू बंगाल, देन मुस्लिम बंगाल, और उसके बाद 1947 में फिर से हिंदू बंगाल एंड मुस्लिम बंगाल। मैं एक सवाल ये पूछना चाहता हूं, 2 सवाल पूछना चाहता हूं। व्हाई शुड हिंदू हिस्ट्री बी बैंड इन हिंदुस्तान? दूसरा सवाल मैं ये पूछना चाहता हूं, एक स्टेट जिसका नाम है वेस्ट बंगाल, क्या वहां 2 कॉन्स्टिट्यूशन चलते हैं? सीबीएफसी एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। उस फिल्म को सीबीएफसी ने सर्टिफाई किया है। इस फिल्म को अमेरिका में दिखाया गया है। क्या कारण है कि वहां की स्टेट गवर्नमेंट, जैसा मैंने बताया, पहले चीफ मिनिस्टर ने आज से 1.5-2 साल पहले बोला था इस फिल्म को नहीं दिखाने देंगे। उसके बाद उन्हीं की पार्टी के वर्कर्स ने हमारे खिलाफ एफआईआर फाइल की गई। उसके बाद जिस थिएटर में हम दिखाना चाहते थे उस थिएटर को कैंसिल किया गया। हमने जिस होटल में फिर दिखाने की कोशिश की वहां पे उसको कैंसिल किया गया। तो एक सवाल मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं, क्या पश्चिम बंगाल में 2 कॉन्स्टिट्यूशन चलते हैं? एक भारत का कॉन्स्टिट्यूशन और एक रूलिंग पार्टी का कॉन्स्टिट्यूशन।
इसका जवाब ढूंढने की आप लोग कोशिश करिए। मैंने आपको सारे फैक्ट्स दिखा दिए हैं, पर अब मैं लास्ट में अपने प्रेजेंटेशन में, उसके बाद विल ओपन टू क्वेश्चन एंड आंसर्स, अपने प्रेजेंटेशन में आपको मैं ये दिखाना चाहता हूं कि इस फिल्म जो हमने अमेरिका में दिखाई उसको लेके उसका क्या रिस्पॉन्स था। आप देखिए कि ऑडियंस क्या सोचती है फिल्म के बारे में। हेलो, हाय सर, विवेक सर, हाउ आर यू? मेरा सवाल यही है कि कश्मीर फाइल से लेके प्लीज बताएं आप कहाँ से हैं, क्या सर, नाम? सर सौरभ मेरा नाम है, बाहर 24 चैनल से हूँ। जो आपकी कश्मीर फाइल से लेकर केरला फाइल से लेकर बंगाल फाइल्स, क्या ये सारी फिल्में आपको लगता है कि नैरेटिव वॉर का हिस्सा है, या आर्ट फॉर्म में लोगों की सोच को बदला जा रहा है? आर्ट का और पर्पस क्या होता है? आर्ट का पर्पस तो ऐसे अगर सिर्फ एंटरटेनमेंट तो बंदर का नाच भी देख सकते हैं। आर्ट का पर्पस ही होता है सामाजिक, जो समाज है, जो हमारी राजनीति है, जो हमारा संस्कृति है, उसको रिफ्लेक्ट करे और एक पॉइंट ऑफ व्यू दिखाए जो कि आपको आम तौर पे और कोई दिखा नहीं सकता है। तो यही तो आर्ट का पर्पस है। तो हम जो हिस्ट्री आपको दिखाई नहीं गई, कितने लोग हैं यहाँ जो जानते थे इस बात को? मैं तो जगह जगह पूछता हूँ, मुझे कहीं, मैं कलकत्ता में स्पीच दी थी, वहाँ जवाब नहीं मिला इस बात का। मैं सबसे पूछता हूँ, बताओ भारत का जो पार्टीशन हुआ उसकी रणभूमि कौन सी थी? लोग कहते हैं पंजाब, क्योंकि उनने गदर फिल्म देखी है। लेकिन डायरेक्ट एक्शन डे के बारे में कितने लोग जानते थे आज के पहले? आज हमारी फिल्म की चर्चा के कारण डायरेक्ट एक्शन डे की इतनी बात होने लगी है। कौन जानता था गोपाल मुखर्जी, गोपाल पाठक के बारे में? हमारी फिल्म के कारण चर्चा में आया, नोआखली चर्चा में आया है। तो फिल्म का काम ये होता है छुपे हुए जो सत्य हैं उनको सामने लाए, और यही हम, पल्लवी जी ने बताया था, यही हमने तीनों फिल्मों से ट्रिलॉजी में कोशिश की है। विवेक सर, आपकी जो आप कहाँ से हैं जरा? सर, मेरा नाम शिबली है और हिंदुस्तान एक्सप्रेस अखबार से हूँ मैं। सर, आपकी जो फिल्में पहले बनी हैं, कश्मीर फाइल्स, ताशकंद फाइल्स और अब दी बंगाल फाइल्स, आमतौर पे लोगों के जहन में एक बात बैठ गई है कि विवेक जी जो है एक ख़ास मकसद से फिल्में बनाते हैं। तो उनको लगता है कि निगेटिव जहन उनके पहले से ही रहता है, इनका मकसद तय है और कैसी फिल्में ये बनाएंगे। पहले आपने बहुत अच्छी फिल्में बनाई, लेकिन जब ये फाइल वाला सिलसिला शुरू किया आपने, तब लोगों को लगने लगा, पल्लवी जी को हम लोग बचपन से देख रहे हैं, बहुत फिल्मों में देखा, तो इनका भी लगने लगा कि दोनों हस्बैंड वाइफ जो है अभी दोनों ने तय कर लिया है कि हमें किस तरह की फिल्में बनानी है। और दूसरा सर एक चीज़ ये हमारा सवाल ये कि जब जुल्म होता है किसी पे तो आप फिल्में बनाते हैं, फिल्में बननी भी चाहिए, लोगों को बताना चाहिए कि जुल्म हुआ कुछ लोगों पे हिस्ट्री में। तो क्या जो गुजरात में दंगा हुआ था उस पर हम आपसे उम्मीद करें कि आप इसी फाइल बनाएंगे, गुजरात फाइल? मुजफ्फरनगर में जो दंगे हुए हैं उनमें आपसे उम्मीद करें, जो मेरठ में हुए या जो भागलपुर में हुए, आपसे उम्मीद करें कि विवेक जी जो है ये भी बनाएंगे, गुजरात फाइल्स ही बनाएंगे, मुजफ्फरनगर फाइल्स ही बनाएंगे? सर प्लीज़ एक सवाल इसमें और है कि जब फिल्में, मैं भूल जाऊंगा इतने सवाल एक साथ, एक एक करके जवाब दे दूं? सर इसी ताल्लुक से सर छोटा सा, सर फिल्में पहले भी जब सर्टिफिकेट मिल चुका है फिल्मों को सेंसर बोर्ड से, तो पहले भी लोगों ने हंगामा किया है, डिस्टर्ब किया है, यहाँ तक कि सिनेमा हॉल में घुस के पर्दे भी फाड़ दिए लोगों ने। पहले देखा, आपने भी देखा होगा। तो अगर बंगाल में ऐसा कुछ हुआ है तो अलग कैसे है ये? पहली बात तो मैं आपका बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं कि आप सारी उम्मीदें मुझसे ही करते हैं। तो मैं एक फिल्म मेकर हूं, भारत का प्रधानमंत्री नहीं हूं, करेक्ट? नहीं, मैं आपके सवालों का जवाब दे रहा हूं। हम लोग बैकवर्ड, तो बड़ी उसके लिए धन्यवाद करता हूं आपका, बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद करता हूं इस बात का कि आपने मुझे इस काबिल समझा कि पूरी फिल्म इंडस्ट्री में जहाँ पे कम से कम 200-300 डायरेक्टर्स हैं, आपने सोचा मैं ही एक डायरेक्टर हूँ जो इस काबिल हूँ कि मैं सारे जितने हिंदुस्तान में जो भी होता है दंगे फसाद उसके ऊपर फिल्म बना सकता हूँ। तो आपसे सबसे पहले सवाल का करता हूँ, मकसद की आपने बात करी। जी हाँ, ये मेरा मकसद है, मैं खुलेआम बोलता हूँ, मैंने कभी अपनी बात छुपाई नहीं, मेरा एक एजेंडा है। मैं एज अ फिल्म मेकर भारत के वो छुपे हुए अनटोल्ड स्टोरीज, जिन सत्यों को दबाया गया, आप ताशकंद फाइल्स जब हमने बनाई थी, लोगों को लाल बहादुर शास्त्री जी के बारे में नहीं पता था, हमने उसके दोनों पहलू दिखाए, लेफ्ट और राइट। पल्लवी जी ने तो बल्कि लेफ्टिस्ट हिस्टोरियन का रोल प्ले किया था उसमें, और हमने कंक्लूड नहीं की फिल्म, हमने ये नहीं बोला क्या सही है क्या गलत है। कश्मीर फाइल्स में भी हमने नहीं बोला क्या सही है क्या गलत है, हमने दिखाया। और तीसरा, इस फिल्म में भी हमने वही किया है। लेकिन ये हमारा मकसद एकदम क्लियर है, मैं हिंदू सिविलाइजेशन के ऊपर फिल्म बनाता हूँ, इसलिए जो हिंदू हिस्ट्री है उसके ऊपर फिल्म बनाता हूँ। मैं अपने को इस काबिल नहीं समझता हूँ कि मैं इस्लामिक हिस्ट्री या क्रिश्चियन हिस्ट्री के ऊपर फिल्में बनाऊँ। आपका जो सवाल है मैं समझ गया, आप क्या कहना चाह रहे थे। उसके ऊपर बहुत लोगों ने फिल्में बनाई हैं, जैसे कश्मीर में जो इस्लामिक हिस्ट्री है कश्मीर की, उसके ऊपर मणि रत्नम साहब ने फिल्म बनाई है रोजा, उसके ऊपर विशाल भारद्वाज साहब ने बनाई है हैदर। आपने तो कभी उनसे ये सवाल नहीं पूछा कि साहब आपने ये सारी फिल्में, आमिर खान साहब ने बनाई थी
किसी ने फिजा बनाई थी, तमाम फिल्में, मिशन कश्मीर बनाई है, विदु विनोद चोपड़ा साहब महान डायरेक्टर हैं वो भी। आपने तो कभी उन लोगों से ये सवाल नहीं पूछा कि साहब आप जो फिल्म बना रहे हैं वो 90 के दशक में बेस्ड है, उसमें कश्मीरी पंडितों का जिक्र तक क्यों नहीं है? ये सवाल तो उनसे कभी कोई नहीं पूछता है। अभी अगर मैं, समझिए, अगर मैं आपको वहां पे एक इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से अगर फिल्म बनाता तो आप मुझसे कभी ये सवाल नहीं करते विवेक साहब आप दूसरा पहलू क्यों नहीं दिखाते हैं, लेकिन अभी आपने मुझसे पूछा। इसका मतलब सबकॉन्शियसली सबके दिमाग में ये बात बैठ गई है कि हिंदुस्तान में हिंदू हिस्ट्री की फिल्में नहीं बननी चाहिए। जब जोधा अकबर बनी तो किसी ने ये सवाल नहीं पूछा कि साहब उस वक्त में तो इतने सारे हिंदू उनके यहाँ काम करते थे और सारी उनकी गवर्नेंस वही चलाते थे, सारे इंटेलेक्चुअल्स वही लोग थे, उनको क्यों नहीं दर्शाया आपने अपनी फिल्म में? पर मैं समझता हूं आप मुझसे उम्मीद करते हैं कि मैं दोनों पहलू दिखाऊं, मैं कोशिश करूंगा। मैं अभी इतना परिपक्व नहीं हुआ हूं कि सारे इतने कंधे मजबूत नहीं है कि सारी दुनिया का बोझ उठा के चल सकूं, पर मैं कोशिश करूंगा। धन्यवाद। नेक्स्ट। विवेक जी, मैं एक कौन सी न्यूज चैनल से? बनर्जी जो है क्यों ऑब्जेक्शन लगा रही हैं आपकी फिल्म पे? आपको क्या लगता है, आपकी नजर में मैं क्या इतनी है? देर जो मैंने बताया नहीं, लगता है आप सुना नहीं, हमें फिर से बता आप दीजिए। व्हाट्सएप तो नहीं चेक कर रही थी उस नहीं, वक्त? आप हमें फिर से बता दीजिए आपकी नजरिए फिर से में। क्यों बता दूं? मैंने इतनी देर तो नहीं, बताया। फिर भी आप बता दीजिए। अब मैं नहीं बता सकता, अब तो मतलब ही नहीं है फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस का। अगर मैंने इतने आपके सामने तथ्य रखे, अगर आपको, फिर भी मैं बता देता हूं, मुझे नहीं पता क्यों ऐसा हो रहा है। ये आप पॉलिटिक्स, आप भी मीडिया, आप इसके आगे शोध करना, रिसर्च करना आपका काम है। विवेक जी, मैं उमाशंकर सिंह हूँ, दैनिक जागरण नई दुनिया में रह चुका हूँ, अभी स्वतंत्र पत्रकार हूँ। बहुत ही चालाक आदमी हैं आप, जैसा कि उन्होंने सवाल किया और आपने बड़ा ही चालाकी से कुछ और जवाब दे गए, और यही विवाद आपके साथ चलता है कि आप नहीं, आप मुझसे स्पेसिफिक सवाल पूछे, मैं स्पेसिफिक जवाब दूंगा। बिल्कुल बिल्कुल। ऐसा कहा जाता है कि जब से आपने फाइल्स करके फिल्में बनानी शुरू की तो वर्तमान सरकार के सहयोग में जहां जहां इलेक्शन होता है और इलेक्शन से पहले ही आपकी फिल्में विवाद लेकर ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमा जाता है और आप अपने चालाकी में सक्सेस हो जाते हैं। ऐसा है क्या? मैं आपसे नहीं, एक सेकंड, आपने सवाल पूछा है तो आप जर्नलिस्ट हैं ना? जी बिल्कुल। तो आपके पास कुछ फैक्ट्स होंगे। बिल्कुल। तो मुझे बताइए ताशकंद फाइल्स कब रिलीज हुई थी? मैंने नहीं, आपने तीनों फाइलों की बात करी। मैं आपको कश्मीर फाइल की भी बात कर रहा हूँ और बंगाल फाइल की भी बात कर रहा हूँ। और आपने कहा आपकी तीनों, सुनिए ना, 2-4 महीने के बाद बंगाल का इलेक्शन है और उसी समय आप बंगाल फाइल लेके आते हैं और अभी आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और ऐसा लगता है कि आप अपने फिल्मों के रिलीज से ज्यादा सरकार के विरोध में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। ऐसा क्यों लगता है? नहीं, आपने सवाल पूछा, मैं जवाब दूं कि आप फिर मैं बोलूंगा तो आप फिर बोलेंगे क्या? तो अब मैं जवाब दे सकता हूं? ठीक है। तो आपके पास एक्चुअली तथ्य नहीं है। आपने जो बोला लोग कहते हैं, ये कौन लोग हैं, कौन कहता है? आप किसी, आपसे नहीं, जब सवाल मैं नहीं पूछ रहा, मैं जवाब दे रहा हूं, तो इसलिए सुनिए। अब आप, कई लोग कहते हैं, लोग कहते हैं, ये सबसे आसान चीज हो गई, लोग कहते हैं। मैंने आपको एक एक चीज पर्दे पे दिखाई है कि कौन लोग हैं जो कहते हैं। जो लोग कहते हैं, आपका काम है एज अ जर्नलिस्ट उसका फैक्ट चेक करना। ताशकंद फाइल्स भारत का जो जनरल इलेक्शंस थे उसके इलेक्शंस खत्म होने के बाद रिलीज हुई, इलेक्शंस चालू होने के बाद रिलीज हुई। आप डेट चेक कर लीजिए। कश्मीर फाइल्स यूपी इलेक्शन खत्म होने के बाद जिस दिन रिजल्ट्स आए उस दिन रिलीज हुई, जिस दिन रिजल्ट्स आए। तो इसलिए आपके 2 फिल्मों के बारे में तो आप गलत हैं। तीसरा, बंगाल फाइल्स, अगला इलेक्शन कहां पे है? बिहार में। तो मुझे बिहार फाइल्स बनानी चाहिए थी। बंगाल का इलेक्शन है मार्च में, अप्रैल में है। और अगर मुझे इलेक्शन को कुछ करना होता तो मैं उस फिल्म को फरवरी में रिलीज करता। कोई भी मूर्ख होगा आदमी जो कि अप्रैल के इलेक्शन के लिए अभी रिलीज करेगा, वो बिजनेस नहीं समझता। सर, आप सुन लिए नहीं? अभी अब नहीं, आपने सवाल पूछा, मेरे को जवाब देने का राइट है, अब मैं जवाब दूंगा आपको, तो आप सुनिए पहले। चौथी बात यह है कि जो फिल्म डायरेक्ट एक्शन डे के बारे में है, जो फिल्म नोआखली राइट्स के बारे में, भारत के इतिहास के बारे में है, वो फिल्म किसी भी सरकार का कैसे फायदा कर सकती है? और अगर मेरे फिल्म बनाने से किसी का फायदा होता है तो पुण्य का काम है, इसमें क्या बुरी बात है? नहीं, मेरा ये कहना था कि आपने बोला लोग का क्या कहते हैं, आपने बोला कि मैं भी हेलो सूत्रों पर विश्वास करता हूँ, मेरे भी सूत्र होते हैं। उसी तरह मैं बोलता हूँ कि कौन बोल रहे हैं, तो गोपाल मुखर्जी के पोते शांतनु मुखर्जी बोल रहे हैं, जिनका आधार लेकर आपने फिल्म बनाया है।
ये रिकॉर्ड पहली बात तो आपको कुछ पता नहीं है, फिल्म गोपाल मुखर्जी के आधार लेके बनाया नहीं गया है, सुन लीजिए ना। पहली बात तो गोपाल मुखर्जी का उसमें मुश्किल से इतना सा एक बिट है, वो भी इंस्पायर्ड कैरेक्टर है। मैं उसके इतिहास में नहीं जाऊंगा। शांतनु जी का खुद का इंटरव्यू देख लीजिए, मैं आपको अभी सारे लिंक्स दे सकता हूं। गोपाल मुखर्जी का बीबीसी पे एक इंटरव्यू है, उस इंटरव्यू में जो उनने बोला है हमने सिर्फ उतना दिखाया है। मुझे गोपाल मुखर्जी की जिंदगी, पॉलिटिक्स उससे कुछ लेना देना नहीं है। ही वॉज अ हीरो, मैंने उनको हीरो की तरह दिखाया है। उनको बंगाल के जो लोग हैं उनको हीरो मानते हैं, मैंने उनको हीरो की तरह दिखाया है। और कल ही मैं उनकी मूर्ति का इनॉग्रेशन करना था कलकत्ता में, इस क्योस के कारण कर नहीं पाया। जिन लोगों ने मूर्ति बनाई थी वो मेरे होटल में आके उसी मूर्ति की फोटो मेरे से कटवा के उन्होंने इनॉग्रेशन किया। सिक्योरिटी के कारण मैं जा नहीं पाया। गोपाल मुखर्जी की मैं काफ़ी रिस्पेक्ट करता हूँ। उनके पोते टीएमसी के साथ काम करते हैं और वहाँ पे कंपल्शन है। आप जानते हैं बंगाल की पॉलिटिक्स क्या है, उनकी मजबूरी है, वो जो कर रहे हैं उनने लीगली किया, हम उसका लीगल जवाब दे रहे हैं। नेक्स्ट। हेलो सर, राजेश खन्ना मैं टोटल खबरें से हूँ सर। आपने कहा कि आप हिंदुज़्म के ऊपर बनाते हैं, जो यहाँ पर जो भीड़ होते हैं पंजाब में जो है कि करीबन जो है कि जो एक आंकड़ा लगभग है कि 20,000 हिंदू वहाँ पे भी ऐसे जेनोसाइड हुए जब वहाँ पर जो है कि ऐसा हुआ, तो क्या उसके ऊपर भी आप कुछ ऐसा बनाएंगे या बनाने की कुछ ऐसा? आप लोग एक लिस्ट दे दीजिए कहाँ पे क्या क्या हुआ और फिर मैं चुन लूंगा उनमें से किस किस पे फिल्म बनाना है। पर हाँ, आपने अच्छी बात करी है, वो सत्य है, लेकिन एक बहुत बड़ी समस्या है। अगर कोई मुझे गारंटी दे कि उस सब्जेक्ट पे फिल्म बनाऊंगा और उसके बाद मुझे कोई रोकेगा नहीं, मैंने फिल्म रिलीज हो पाएगी, तो मैं बनाने को तैयार हूँ। आप अच्छी फिल्में बनाते हैं, जो आप फाइल्स बनाते हैं, कश्मीर फाइल बनी, लेकिन कहीं भी नेशनल अवार्ड वगैरह पे या कहीं और अवार्ड जो है कि उसमें कहीं नहीं, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? क्या उनको नहीं, कश्मीर फाइल्स, ताशकंद फाइल्स को 2 नेशनल अवार्ड मिले थे, कश्मीर फाइल्स को 3 नेशनल अवार्ड्स मिले थे, तो ऐसा नहीं है। या नेक्स्ट। विवेक सर, हिमांशु दिस साइड फ्रॉम न्यूज़ बॉक्स। जी सर, मेरा आपसे सवाल है कि कौन है, कहाँ है? सर दिस साइड। हाँ ओके, सो सर आप कहाँ से बताइए तो। सर फ्रॉम न्यूज़ बॉक्स सर। ओके सर, जब भी आप कोई फिल्म बनाते हैं, लाइक अब बंगाल फाइल्स से पहले कश्मीर फाइल्स थी, तो ऑफकोर्स कंट्रोवर्सी थोड़ी सी सब्जेक्ट रहती है और खुद ब खुद वो चल के आ जाती है, लेकिन जिस स्टेट के ऊपर वो फिल्म होती है वहाँ के पॉलिटिशियन से लेकर सीएम को लेकर थोड़ा सा उनके ऊपर उनको दिक्कत हो जाती है फ्यूचर के लिए या प्रेजेंट के लिए या पास्ट के लिए। अब ये फिल्म बंगाल फाइल्स जो है एक बंगाल बेस्ड पर एक स्टोरी है। वहाँ ममता बनर्जी वहाँ की सीएम है, जैसा कि हम कल परसों से वहाँ कंट्रोवर्सी देख रहे हैं खुद ब खुद। बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, सबको देखना चाहिए, मैं खुद कहता हूँ, लेकिन वहाँ के सीएमओ के लिए थोड़ी सी तकलीफ हो जाती है। ममता बनर्जी की बात करते हैं तो जिस सब्जेक्ट पर ये फिल्म है, जिस स्टेट को लेकर ये फिल्म बनाई गई है, अगर ये फिल्म वहीं रिलीज नहीं होगी तो अगर वहाँ के लोग उसको नहीं देख पाएंगे तो उनके लिए बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो कल जितनी कंट्रोवर्सी हुई है, तो आपको लगता है कि बंगाल में इस फिल्म को जो है रिलीज किया जाएगा, किस तरीके की स्ट्रेटेजी आप यूज करेंगे वहाँ रिलीज करने के लिए, क्योंकि वो तो रोकेंगे उस सब्जेक्ट को वहाँ रिलीज होने के लिए, तो आप किस तरीके से उसको देखते हैं? हमारी फिल्म कॉन्स्टिट्यूशनली हमें राइट है दिखाने का, हम कॉन्स्टिट्यूशन से जाएंगे, लीगली जाएंगे। अगर वो रोकेंगी तो हम लीगल कोर्स लेंगे उसका। और हम क्या कर सकते हैं, हम तो एक कॉमन सिटीजन है आपकी तरह से। अगर कल को पुलिस पकड़ के हमको लाठी मारने ही लगे ज़बरदस्ती, तो हम क्या कर सकते हैं? 10 पुलिस वाले मारे तो एक आदमी क्या कर सकता है? हम कोशिश करेंगे कि ऐसा ना हो, और हम प्रार्थना भी करेंगे स्टेट गवर्नमेंट से कि उनको सद्बुद्धि मिले, ऐसा वो ना करें। क्योंकि अगर वो ऐसा करेंगी तो मेरा तो जो होगा नुकसान हमारा, लेकिन जो बंगाली कम्युनिटी है वो बहुत खफा हो जाएगी। क्योंकि ये फिल्म जो है, जिस आपने देखा कितने बंगाली लोग हैं, वो यानी मैं तो बनाऊं तो आपको कम से कम मैं 1000 बंगाली लोग जिनने फिल्म देखी है उनका रिएक्शन दे सकता हूं। इसको तो ये भारत की फिल्म है, मैं आपको सच बता रहा हूं, ये भारत के हर व्यक्ति की फिल्म है। यहाँ हम बैठे तो सवाल जवाब हो रहा है, आप फिल्म जब देखेंगे। मैं आपको एक किस्सा बताता हूँ, जितने थिएटर्स में फिल्म हुई, जब फिल्म खत्म होती है लोग अगले 5-7 मिनट तक सीट से हिलते नहीं है, जस्ट टू गिव रिस्पेक्ट टू अवर हिस्ट्री। ये बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी से, बहुत सिंसियरिटी से फिल्म बनी है, इस पे कोई ऑब्जेक्शन नहीं ले सकता। और बंगाली लोग तो गर्व करेंगे इस फिल्म पे। और आप देख लीजिए सोशल मीडिया में भर भर के लोग यही लिख रहे हैं कि थैंक यू कि आप हमारी हिस्ट्री दिखा रहे हैं बंगाल की पहली बार। एनीबडी एल्स? विवेक जी इधर, अभिषेक सर, आई एम प्रणव हियर, ये सामने आपके। मैं प्रणव प्रखर हूँ विजन टेलीविजन से। बोल्डेस्ट फिल्म एवर, सो आई थिंक दिस स्पीक्स अ वॉल्यूम फॉर व्हाट यू आर डूइंग। लेकिन बड़ी बात यह है कि फिल्म के पीछे भी फिल्म बन गई, तो ये आपकी पब्लिसिटी का एक माना जाए, एक काबिलियत माना जाए, या ये माना जाए कि यू आर अंडर ट्रिमेंडस स्ट्रेस?
अगर मैं अपनी बात करूं, मैं तो वाकई में हम तीनों लोग, आप देखिए अभिषेक जी का चेहरा कैसे ये बेचारे स्ट्रेस में लग रहे हैं, ठीक है। पल्लवी जी तो एक्ट्रेस हैं तो थोड़ा मुस्करा लेती हैं, मैं तो वाकई में स्ट्रेस में हूं। मैं आपको फ़ोन पे दिखा सकता हूं मेरी रिंग से, मैं 4 घंटे भी नहीं सो पा रहा हूं पिछले 2-3 दिन से। मैं बहुत परेशान हूं, इसलिए किसी भी फिल्म मेकर कोई अच्छा नहीं लगता। आप बताइए, आप एक आर्टिकल लिखें और उसे कोई फाड़ दे, आपको कैसा लगेगा? तो पर नहीं, मैं देखिए, ये तो अब अगर पब्लिसिटी, ये कोई अच्छी, कोई इस तरह की पब्लिसिटी कोई उम्मीद नहीं करता है, लेकिन अगर कोई फिल्म रोकेगा तो न्यूज़ तो बनेगी, तो उसमें मैं क्या कर सकता हूँ? आप कहाँ से हैं? आप वेयर आर यू फ्रॉम? आप कहाँ से हैं? अपना इंट्रोडक्शन तो दीजिए। पूछिए, ये पूछिए। नहीं, मैंने बोला ना, आपने सुना नहीं कि एक भी कट नहीं है फिल्म के अंदर। ये पूरी तरह से पहली ऐसी फिल्म है जिसको बिना एक कट के हुई, लेकिन हाँ, इसके पीछे बहुत टाइम लगा। एग्जामिनिंग कमेटी ने इसको रिव्यू किया, रिवीजन कमेटी ने रिव्यू किया, इस एक्सपर्ट्स को बुलाया गया, एक एक पहलू, एक एक चीज़ इसकी तौल के इसको ओके किया। और एक पल्लवी जी से सवाल है मेरा, क्योंकि चाइल्ड आर्टिस्ट से लेकर अभी तक की आपकी जर्नी जो है बहुत लंबी हो गई है, और अभी इस फिल्म में आपने काफ़ी अलग सी भूमिका निभाई है, तो आपको किस तरह से मतलब लगा? मतलब बहुत समय, और ख़ास तौर से जब आपके हस्बैंड ही डायरेक्टर है, तो उनके लीडरशिप में आपको किस तरह की अनुभव हुआ? मतलब एक्सपीरियंस अपना बताएं थोड़ा सा। आपने जिस तरह से कहा कि बहुत लंबी हो गई है जर्नी, तो मतलब बंद कर दे क्या काम करना? मतलब हम लोग देख रहे हैं और I'm just joking. सबसे पहले मैं विवेक के साथ काम करने का अनुभव बता देती हूँ। हम लोग हमारी शादी के पहले से एक साथ काम कर रहे हैं। हमने कई सारी एड फिल्में, तब विवेक एड फिल्में बनाया करते थे, तो कई सारी एड फिल्में साथ में हमने काम किया है। हमने टेलीविज़न पर साथ काम किया है। तो एक वर्किंग रिलेशन जो होता है एक डायरेक्टर और एक्टर के बीच में, वो हमारा बहुत पहले से इस्टेब्लिश्ड रहा है। और जब से आई एम बुद्धा हमने फॉर्मुलेट किया है हमारा प्रोडक्शन, बुद्धा इन अ ट्रैफिक जैम जो फिल्म बनाई थी विवेक ने 2011 में, उसके बाद से हमने वी फॉर्म दिस कंपनी। सो वी वर्क टुगेदर वेरी वेल एज पार्टनर्स ऑल्सो। लेकिन आपत्ति सिर्फ एक ही होती है साथ काम करने की कि एक ही कमरे से उठ के बाहर आते हैं, एक ही लिविंग रूम में आमने सामने बैठ के चाय पीते हैं, फिर दोनों जाके अंदर एक एक करके तैयार होते हैं, फिर एक ही ऑफिस में जाते हैं, फिर पूरा दिन इकट्ठा काम करते हैं, फिर शाम को वापस आते हैं, लिविंग रूम में एक दूसरे के सामने बैठते हैं और फिर एक ही कमरे में वापस सोने के लिए चले जाते हैं। तो ये कभी कभी स्पेस की प्रॉब्लम हो जाती है। ऐसे लगता है कि भाई या तो आप चले जाओ कहीं पे या मैं कहीं पे चली जाती हूँ कुछ दिनों के लिए। तो बस अपार्ट फ्रॉम दैट आई थिंक वी वर्क वेरी वेल टुगेदर। और जहाँ तक ये माँ भारती के कैरेक्टर की बात है, आई थिंक आई एम एट अ गुड प्लेस एज वाइज, एक्सपीरियंस वाइज एज एन एक्टर। मुझे नहीं लगता 10 साल पहले मैं इस तरह के कैरेक्टर को हैंडल कर पाती, क्योंकि आपको जीवन में भी थोड़ा परिपक्व होने की ज़रूरत होती है। आपको जीवन बहुत कुछ सिखाता है और उस सीख से आपके अभिनय में भी बहुत परिवर्तन आता है। तो शायद ये सही समय था माँ भारती प्ले करने का। थैंक यू। एक सेकंड, विल टेक ओनली 2 क्वेश्चंस। हम सबकी फ्लाइट्स हैं, विल मिस आवर फ्लाइट। माय लास्ट क्वेश्चन विवेक जी, लेट हर आस्क। एक सेकंड, लेट हर आस्क। या So this is Prachi from India today. So as we see, the film is based in Bengal and it shows the atrocities that the people face. So my question to you is, would you like to have a face-to-face sit-down with Mamata Banerjee to sort it out? And do you think she would agree to have a conversation face-to-face? I would love to, and through you, if this message can reach her, I'll really appreciate it. I would love to have a conversation with her or anybody who wants, and together
I would like to gift her a T-shirt and say, thank you very much. Thank you, sir. विवेक जी एक All सवाल right. Sir, विवेक thank जी you. सर Sir, अब हमारी one All last right, question, sir. everybody. विवेक Thank जी you. One last question, sir. Thank you so much. We have time constraints.